Hello students, now let us continue our chapter trigonometry, and as you know that in the last lecture we talked about what trigonometry is, what are the uses of trigonometry in our day-to-day life, and what are trigonometric ratios. As I explained what is sine theta, cos theta, tan theta, cosecant, and various other trigonometric ratios. As you know, out of these 6 trigonometric ratios that we have studied in the last class, and I want to tell you that the 3 basic trigonometric ratios, that is sine, cos, tan, and out of these 3 also, always you should try to understand that sine theta and cos theta, they are the basic trigonometric ratios, and most of our questions that we are going to study in our upcoming trigonometric identities can only be solved once you bring the given question to the basic, that is sine theta and cos theta, not even tan theta, sine theta and cos theta. Now what are trigonometric identities? This is our today's topic. Trigonometric identities, these are the equalities that involve trigonometric functions and hold true for all values of variable given in the equation. Okay, these are the keywords that you should always remember while studying what are trigonometric identities. Once again, these are the equalities that involve trigonometric functions and hold true. It holds true for all the values of variable given in the equation. Okay, out of these 3 trigonometric ratios like sine theta, cos theta and tan theta, if any one of the 3, let's say you are given, any 1 is given or any 2 is given, you can easily calculate the other trigonometric ratios. Now the point is how to keep in mind and how to know what is sine theta, what is cos theta and what is tan theta. उसके लिए एक छोटा सा हम जो है यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट करते हैं. लेट अस राइट दैट some people have curly brown hair through proper brushing. अब क्या करेंगे आप, इनके बीच में आप जो है इस तरीके से सभी के बीच में एक लाइन लगा दें. जैसे कि आपको पता है साइन, दिस एस इज फॉर साइन थीटा. ये बच्चों साइन थीटा हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. ये टी इज फॉर द टैन थीटा. पी परपेंडिकुलर. H for the hypotenuse, B base, H again hypotenuse, B base, and P is the perpendicular. ओके, सो इस प्रकार से आप इनको पहले लेटर लेकर आप इनको जो है याद रख सकते हो इस तरीके से. चलिए अभी 90 डिग्री ट्रायंगल बना लेते हैं और इस 90 डिग्री ट्रायंगल में हम इसको जो है जो अभी लॉजिक क्रिएट किया इसको कोरिलेट करते हैं. बच्चों ये एंगल थीटा, दिस इज 90 डिग्री. इसके सामने वाली साइड हमेशा जो है परपेंडिकुलर और 90 के सामने साइड क्या होती है बताया था आपको, इट इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल sin theta
is P over H. P over H. What about this cos theta? B over H. This is B. P H. In some of the books, you will find that this side, that is side BC, is also called as adjacent, and this side is also called as the opposite. Why opposite? Because they are talking about the side that is opposite to the given angle. This is called opposite side. This is called the adjacent. Why adjacent? Because this side is adjacent to this particular given angle and this side is opposite to this given angle. So in either way you can see the given information and accordingly you can solve your questions. So this is the best way to remember. Once again, some people have curly brown hair through proper brushing. एक आप लॉजिक लगा सकते हैं, perpendicular upon hypotenuse is sin theta, B over H, that is base over hypotenuse, is cos theta, and P over B, perpendicular upon base, is tan theta. Let's move to the next topic. Okay students, जैसे कि अभी आपको पीछे एक लॉजिक बताया गया किस प्रकार से आप sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा निकाल सकते हैं, वैसे ही एक मैजिकल हेक्सागोन की बात की जा सकती है नेक्स्ट टॉपिक में, और ये आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिकल हेक्सागोन. तो वो आपके सामने बनाने जा रहा हूं, उसको आप फॉलो कीजिए और आप किसी भी क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से उसको फॉलो करके निकाल सकते हैं. अदरवाइज प्रैक्टिस तो है ही है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको फॉर्मूलेज वैसे भी याद हो जाएंगे, बट स्टिल अगर आपने इसको क्विक एक तरह से बहुत जल्दी तरीके से सीखना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है इस मैजिकल हेक्सागोन को जरूर स्टडी करें. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दिस हेक्सागोन. एज यू नो हेक्सागोन हैज गॉट कितनी साइड्स होती है बच्चों हेक्सागोन में? हेक्सा मीन्स व्हाट? 6 साइड्स. 1 2 3 4 5 6. ये हमने हेक्सागोन बना लिया. तो इस प्रकार से हेक्सागोन बनाया आप, और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे आप जो है इसके सेंटर में आप जो है पहले इसको 1 लिख दें. ये सारी जितनी भी आइडेंटिटीज आपकी हैं वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी. देखिए आप एक एक करके आपको बताते हैं. ओके बच्चों, तो सेंटर में 1 लिखा गया है. ये बताएंगे इसका भी रीजन है क्यों 1 लिखा. सेंटर में हमारे पास 1 है. लेट मी राइट इट. दिस इज 1. ओके बच्चों, अब आप क्लॉकवाइज यहां से शुरू कर दें. एक यहां भी एक लॉजिक लिख लेते हैं. ट्राइंग समथिंग कूल. ट्राइंग समथिंग कूल. वैसे याद रखने के लिए इनके आप फर्स्ट लेटर ले लें और क्लॉकवाइज शुरू हो जाए. लेट अस दिस इज tan theta, this is sin theta, and this is cos theta. So let us start like this. Tan theta, sin theta, cos theta. अब राइट साइड में ये भी याद रखें आप, इस साइड में हम को वाले लिख लेते हैं. तो यहां जो एक सीकेंट रह जाएगा, सीकेंट, ये कोसीकेंट, देखिए आप राइमिंग है, और tan विद cot थीटा. तो आपका काफी जो है ये पूरा का पूरा जो हेक्सागोन की सभी साइड्स जो हैं उनको हम कवर अप कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं. ओके बच्चों, अब क्या क्या निकाल सकते हो आप यहां पर. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज. दिस इज द फर्स्ट part that you can check from this hexagon. Let me write down
So the first one is the reciprocal identities. What is meaning of this, the reciprocal identities? It says that you can write sin theta as 1 over, अगर आप डायगनली देखें आप, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, डायगनली देखना है आपने. एंड हाउ कैन यू राइट cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा. अब आप बताइए tan थीटा क्या होगा? सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. आसानी से हो गया. दीज आर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो हमने यहां से इनको निकाल सकते हैं. और इसका अगर करना चाहें व्हाट इज, ये तो आगे आप निकाल सकते हो व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, तो यू कैन जस्ट चेंज द साइड्स एंड यू कैन गेट दैट आल्सो. जैसे हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन. कभी भी आपको आइडेंटिटीज करते समय इनकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए ओके. ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, दैट इज द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज. लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द यूनिट सर्कल आइडेंटिटीज. तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी दैट इज यूनिट सर्कल आइडेंटिटीज. ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट विल बी यूनिट सर्कल आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप बच्चों ऐसे मूव करोगे क्लॉकवाइज या फिर ऐसे मूव करोगे, तो कैसे देखिए आप निकाल सकते हो कि tan थीटा कैन बी रिटन एज, बोलिए, sin थीटा ओवर cos थीटा. क्या इसको हम किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं? यस. चलिए हम इसके लिए एक जो पुराना हमने जो एक लॉजिक लगाया था, ट्रायंगल बनाते हैं. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बताया था आपको. उसी हिसाब से हम, और पीछे आपने अभी कर भी लिया है. मान लीजिए थीटा है, ये 90 A B C, as I told you the side opposite to this will be P. इसके सामने साइड क्या होगी बच्चों? हाइपोटेन्यूज. एंड व्हाट विल बी दिस? बेस. सो tan थीटा निकालिए. tan थीटा क्या होगा यहां से देख के बताएं आप. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो दैट इज P ओवर B. P ओवर B. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखिए आप, साइन थीटा क्या बच्चों? सम पीपल हैव, सो साइन थीटा इज people have P over H. And what will be cos theta? That will be B over H. अब आप उनको राइट साइड में, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, तो सॉल्व कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए दोनों को. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू P ओवर H डिवाइडेड बाई B over H, which can be written as P over H into H upon B. H cancel, so you are left with P over B. And what is tan theta here? P over B. So both are same. So we can say that tan theta can be written as sin theta over cos theta. उसी प्रकार से बच्चों आप आगे
और किन किन फंक्शंस को ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। cos थीटा को आप लिख सकते हैं, cos थीटा कैन बी रिटन एज sin theta over tan theta. How can you write tan theta if you go like in this direction? So that can be written as, बोलिए, secant theta divided by cosecant theta. And how can you write cot theta if you come in this direction? So that can be written as, cot theta can be written as, बोलिए, cosecant theta divided by cosecant theta divided by secant theta divided by secant थीटा। तो इसी प्रकार से बच्चों आप किसी भी जगह आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन फाइंड एज मेनी एज कॉम्बिनेशंस यू पॉसिबल। जैसे अगर आपसे पूछे कॉस थीटा क्या है, तो यू कैन राइट इट एज कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा। मान लीजिए आपसे पूछेंगे कॉट थीटा क्या, यू कैन राइट इट एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और वैसे भी कॉट जो है टैन का उल्टा है। अगर टैन साइन ओवर कॉस है तो देखो यहां पे जस्टिफाई होगा, tan sin ओवर cos है तो बच्चों cot क्या होगा, क्योंकि cot रेसिप्रोकल है इसका, सो cos ओवर sin होगा। तो इस प्रकार से ये सारा खेल जो है मैजिकल हेक्सागोन का है। चलिए आगे और पता लगाते हैं, एक और ट्राई करते हैं। इट्स लुकिंग लाइक ए गेम, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम की तरह जो है जो मैजिकल हेक्सागोन की हर चीज हमें जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो रही है। लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, तो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में क्या होगा, आप किसी भी दो फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ले लेंगे, आपके पास मिडल वाला आ जाएगा। जैसे tan थीटा डॉट cos थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। ट्राई करके देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, व्हाट इज tan थीटा, दिस इज p ओवर b, एंड व्हाट इज cos थीटा बच्चों, b ओवर h। तो दिस b एंड b गेट कैंसिल, तो हमारे पास साइन थीटा जो कि p ओवर h ही होता है, ये आ जाएगा। लाइकवाइज अगर आप इस साइन को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड पार्ट में ये आ जाएगा b साइन थीटा डॉट कॉट थीटा विल गिव यू कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इंटू विच वन, सो यू विल गेट दिस। जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये मिडल वाला आ गया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। सो tan थीटा इंटू cosecant theta will always give you secant theta. Likewise, cosecant theta into cos theta will give you what, cot theta. And what you will get, sin theta into cot theta will give you cos theta. And secant theta dot cot theta can give you cosecant theta. You can try as many as possible, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये आपके सामने कुछ किए हैं ट्राई। ओके बच्चों, आप और भी साथ साथ ट्राई करके इसको जो है आने वाले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आप ट्राई कर सकते हैं देख के आप मैजिकल हेक्सागोन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। सो यहां आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे,
आप एक प्रकार से लाइन ऐसे पैरेलल लाइंस बना लीजिए, जैसे ये भी हो जाएगी आपका। सो इसी में थ्रू आउट देखेंगे तो फर्स्ट विल बी साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों। सेकेंड ये देखिए ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है। व्हाट विल बी tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा बच्चों। एंड व्हाट विल बी secant थीटा, secant थीटा जो है वो आ जाएगा cosecant 90 minus theta. This is how you can remember these formulas, different identities. Okay, so this is all fourth point about complementary angles. Okay students, next जो है हमारे पास that is Pythagorean identities. पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ये हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है और आपको जो है इनको याद रखना, और आगे इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। सो द फर्स्ट वन विल बी, अब इसको याद कैसे रखना, देखिए अब जो हमने इतनी देर से ये जो वन लिखा हुआ है इसीलिए है, आप इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चों, ये वाले में क्लॉकवाइज चले जाएंगे। लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर शेड। मान लीजिए आप इसको ऐसे, ये वाला हो गया आपके पास, देन यू वन अनदर वन, दिस इज, एंड द थर्ड वन इज दिस। ओके, अब आप इनमें क्लॉकवाइज बना देंगे इनको। ये क्या सिंबलाइज करता है? When you move like this from sin to cos and you write that sin square theta plus cos square theta, वो आपके पास देखिए सेंटर में क्या बचा, यहां पर, यहां हमने लिखा हुआ है 1, सो दैट विल बी इक्वल टू अ बिग 1, दैट इज 1, सो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, this is identity number 1, this is identity 1, this is 2, total we have 3 basic identities. So 1 plus cot square theta will be equal to cosecant square theta, and the third one will be 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. देखिए आप सेम 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, आप ऐसे मूव करेंगे, दैट इज इट इज ड्रॉन लाइक दिस। 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, देखिए कोसिकेंट, tan स्क्वायर प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, secant स्क्वायर। सिमिलरली sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So these are the basic trigonometric identities that we are going to apply in the upcoming questions. We will solve those questions. Okay बच्चों, I hope you have understood each and every logic that we try to apply using the magical hexagon. इसको अप्लाई कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, so that आने वाले हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें सारा प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम इन सब बेसिक कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। I hope you like this video. Please comment it and share it with your friends. Thank you for watching.